اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دعاؤں کے لیے، اعتکاف کے لیے جامع مسجد نور مصطفیٰ کی طرف بڑھ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معتکف ان کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اندر بھی معتکفین عاشقان رسول موجود ہیں. بہت پیارا سیٹ اپ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. 50 سے 60 یا 70 تک انشاءاللہ امید ہے تعداد ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین بھی اعتکاف میں آئے، برتنے لیں، جو جس ٹائم آپ آ سکتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. فل ہو گیا نہیں. کیونکہ بزرگ جو ہے ان کا ادب ہمارا دین بتاتا ہے، ان کا ادب ضروری ہے. تو بزرگوں کے ساتھ فل ہم نے تعاون کرنا ہے. ہماری وجہ سے کسی بزرگ کا دل نہ دکھے، آپس میں بھی کسی کا دل نہیں دکھانا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کریں گے. آواز دھیمی آئی ہے، افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے، تو اس وجہ سے ابھی پہلا دن بھی ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم بزرگوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے ساتھ فل انشاءاللہ ادب سے پیش آئیں گے. اور اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مین مقصد یہ ہوتا ہے دھرنا دینا. دھرنا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے گھر کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں گناہگار کو تو معاف نہیں فرما دے گا. تو اس نیت سے ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. اعتکاف کی روحانیت کے لیے، قبولیت کے لیے شرط ہے اپنی زبان پر خاموشی اختیار کرنا. کیونکہ ہم اعتکاف میں ہیں، جب آپ نیت کر لیں گے اعتکاف شروع ہو جائے گا. تو جو جتنی گفتگو فضول کرے گا اس کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے، روحانیت جا سکتی ہے. تو یہاں پہ کوشش کرنی ہے اپنی زبان پہ ہم نے قفل لگانا ہے. باتیں کرنے کے لیے پورا جہان تھا کیونکہ ہم اب ایک مقصد لے کے آئے. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، علماء آئیں گے، ان کی زیارت کریں گے. بڑے بڑے علماء 22ویں روزے کو سید احمد رضا شاہ صاحب یہاں پر تشریف لائیں گے. تو بڑے بڑے اس طرح علماء، کل بھی مولانا کاشف مدنی صاحب آئیں گے، رات کو مدنی چینل کے نعت صاحب کو سنائیں گے. دین ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ مختلف قرآن حضرات آئیں گے جو آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں گے ماشاءاللہ. اور ہماری خوش نصیبی اس دفعہ جو ہمارے معلم ہیں، استاد صاحب ہیں، وہ خانے وال سے ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے. اب ان کا سفر دیکھ لیں، اپنی مصروفیت چھوڑ کے. وہاں بھی مسجدیں ہزاروں تھی، وہاں بھی فیضان مدینہ تھا. ہم نے درخواست کی کہ ہمارے پاس بھی اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ ہمارے ماشاءاللہ حضرت مولانا ابو ہریرہ عطاری صاحب تشریف لائے ہیں. ابھی میں ان کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں اور ہماری اصلاح کریں، ہمیں اعتکاف کی نیت کروائیں اور آگے ہمیں لے کے چلے ماشاءاللہ. نیت کر لیجیے استاد کا ادب کریں گے، کیونکہ جو استاد کا ادب کرتا ہے وہی جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے. اور جو استاد کی بے ادبی کرتا ہے تو پھر سوچ لیجیے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو ناراض نہیں کرنا انشاءاللہ. ساری چیزوں سے آگے ہوں. پتنی مرکز خزانہ مدینہ نے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں مقرر کیا کہ آپ یہاں پر مسجد نور مصطفیٰ میں جا کے عاشقان رسول ہے انہیں آپ دین کے حوالے سے گائیڈ کریں. آپ نے اس چیز میں ہمارا ساتھ دیا. آپ میں سے کس نے پہلے دعوت اسلامی کی طرف انتخاب کیا؟ پتنی مرکز میں جا کر، پتنی مرکز میں خزانہ مدینہ میں جا کر کس نے انتخاب کیا؟ انشاءاللہ آپ کو اسی جامع مسجد نور مصطفیٰ میں انشاءاللہ خزانہ مدینہ والا ماحول بنائیں گے. تو آپ نے گھر بار چھوڑ کے والدین
अपने बहन भाई दोस्त सारी मसरूफियात छोड़ के मस्जिद में किस लिए आए हैं? अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए आए हैं, अल्लाह पाक की इबादत के लिए आए हैं। अगर आप यहाँ तो अल्लाह पाक की इबादत के लिए आए हैं लेकिन कोनों में लग के मोबाइल के साथ लगे रहे या माज़अल्लाह मस्जिद में फजूल को ही करते रहे, मस्जिद में दुनिया की बात लस्सी करना गुनाह है, मस्जिद में क्या क्या लगाना उलमा लिखते हैं कि कब्र में अंधेरा लाता है, तो मस्जिद में माज़अल्लाह में ऐसे काम करते रहे जिससे हमारे अमाल ही बर्बाद ना हो जाए। तो हमने इन सारी चीजों से बचना है। क्या करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है अपने वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमजान मुबारक 21 रमजान मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मामूल रहा है। क्या करीम अलैहिस्सलाम ने जो उम्र थी उसमें जो रमजान शरीफ आपने पाया उसमें आखिरी हिस्से का इत्तिकाफ फरमाया। हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम का इत्तिकाफ रह गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अगले साल 20 दिन का इत्तिकाफ किया। यानी हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी 10 दिन के इत्तिकाफ से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कज़ा फरमाई। अब पर कज़ा नहीं है, अब पूरे मोहल्ले में एक बंदा भी बैठ जाए तो उसका फर्ज अदा हो जाता है। मतलब फर्ज किफाया है, बस्ती में एक बंदे को बैठना सुन्नत मुअक्कदा लाज़िम है और एक मर्तबा जिंदगी में तो बैठना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने हमें ये अता फरमाई है कि हमें हमारी जिंदगी में इत्तिकाफ का मौका मिले। मस्जिद में हर सेकंड हर सांस नेकियों में है। मस्जिद में बंदा रह के सांस भी लेता है ना तो वो भी उसका क्या किया जाता है, नेकियां लिखी जाती है। तो आज इत्तिकाफ की नियत फरमा लें आप इंशाअल्लाह 20 रमजान मुबारक की आखिरी हिस्से का इत्तिकाफ यानी 21 रमजान मुबारक से लेके शव्वाल का चांद नजर आने तक हम मस्जिद में रहेंगे। अल्लाह पाक की इबादत में वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, फजूलियात से बचेंगे। और अब बाहर से जो लोग आएंगे वो हमें देखेंगे कि इत्तिकाफ वाले कर क्या रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अज़ान होने से पहले वुज़ू करके सब में बैठ जाए। ये ना हो कि बाहर से इस्लामी भाई दूसरे आ रहे हैं और हम क्या कह रहे हो जी अभी हमारा इत्तिकाफ वाला इस्लामी भाई जो 24 घंटे मस्जिद में अल्लाह पाक का मेहमान बना हुआ वो क्या करने जा रहा हो, वाजिबों में इस्तेंजा करने जा रहा हो। ये गलत होगा। बाहर वाले क्या गाइडेंस देंगे, वो क्या सोचेंगे, तरबियत नहीं होगी। ये सोच अब आप पहले थे ना आपके ऊपर कोई लेबल नहीं था, अब आपके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि इन्होंने जामिया मस्जिद मुस्तफा में 10 दिन का इत्तिकाफ किया है। अब आप जब यहाँ से मस्जिद से बाहर जाएंगे, अब बाहर जाकर भी अगर आपके वही मामूल रहा तो लोग क्या कहेंगे, 10 दिन यही सीखा है, 10 दिन में यही सीखा है, वैसे तो बोलता है, वैसे तेरी जुबान चलती है। लेकिन उन्हें तो जो 10 दिन अल्लाह की दीन की बारगाह में दी है उसका फायदा तो कोई ना हुआ फिर। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है हमने इंशाल्लाह। बाकी तरावियों के बाद हम हल्के भी बनाएंगे अपने, तो इंशाल्लाह करीम आपको आपसे सीखेंगे भी और आपको सिखाएंगे भी, क्योंकि मेरे से पहले फरमाते हैं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब तक हमारी अपनी तरबियत नहीं होगी हम दूसरों की नहीं कर सकेंगे, अब तक हम अपने घर वालों की भी तरबियत नहीं कर सकेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हमें बाहर बुरी लगती है, हम घर में तो मना करते हैं लेकिन वो हमारे मना किए के मना होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ फॉल्ट है। जब तक हमारे अंदर वो चीज खत्म नहीं होगी, अब हमारे घर में जब अगर चाहेंगे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि अपनी आंख में तुम्हें शरीर नहीं नजर आता और दूसरे की आंख में दिल का भी नजर आ जाता है। अपनी बुराइयां नजर नहीं आती और दूसरे की छोटी सी बुराई है वो पकड़ लेते हैं कि लो जी ये। तो अब ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करना है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह करीम ये मुताबिक बाद में मुसलसल 1-1.5 घंटा बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा गाइड। और वैसे भी सोने से थोड़ा गुरेज कीजिए क्योंकि हमने सारी जिंदगी सोया ही है। अब 20 साल से उम्र नीचे किसी की भी नहीं है तो सारी जिंदगी सो कर गुजारेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह पाक की बारगाह में हमने बैठना है और ज़िक्रुल्लाह करना है, सलातो तस्बीह पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है, कम से कम डेली ज़्यादा नहीं तो 2 पारे कुरान पाक की लाज़मी पढ़नी है। मुश्किल नहीं है 2 पारे पढ़ना। आपने तो जैसे स्नान करिए जिसमें तक 1 पारे करीब पढ़ लिया माशाअल्लाह जी। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले ना। रमजान मुबारक में एक बार को सुभान अल्लाह कहने का सवाब पता है आपको?
पता है अल्लाह पाक का नाम ही लिया जा रहा है ना, और तो नहीं लगे सवाब का सवाब। और रमजान मुबारक में वैसे भी सवाब बढ़ाते जाते हैं। नेकी का सवाब 70 गुना, और एक रिवायत में आता है कि 10 से लेकर 700 गुना, और अगर अल्लाह चाहे तो 700 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दे। अगर हमें एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने पर 1 लाख नेकियां मिले तो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम निकुल्ला करेंगे, जिक्र पाक पढ़ेंगे, डेली कम से कम हम 2 बार बात पढ़ेंगे। सुनियत कर लें, सुन्नतल इतिकाफ। ये याद रखिएगा कि अब आप ये फरमाएंगे मस्जिद की हदूद का, फिलहाल मस्जिद और कहाँ तक जा सकते हैं।